Hello and welcome to this new lecture, lecture 10, lecture for week 10 of the object-oriented programming. Previously, we talked about classes and objects and how do we define a class and how we declare objects for the class in order to utilize that class. And for each object, we try to identify two kinds of details. The attributes of the object, which were represented through the variables in the class, and then the behavior of the object, which were represented through the functions or methods inside the class. In this lecture, we'll look at a relationship between the classes where we can utilize these existing classes or reuse these existing classes to form new classes. And this is called composition, although it has various types, but for the sake of simplicity, we'll discuss composition, or we'll focus on the composition aspect of the object-oriented programming, where we can build complex objects from simpler reusable parts. For example, uh, composition is a design principle where a class achieves complex behavior by containing instances of other classes rather than inheriting from them. Model has a relationship. As you'll see in the examples, that composition and object-oriented is a design principle where we can have objects of one class, or we can include objects of one class that will form the components of that class, and another class to create a new class. And we do not use inheritance, although we have not studied inheritance yet. But composition, instead of you inheriting the entire details from one class, we just use an object of that class in another class. And this creates has a relationship between these classes, like one class has an object of another class. We'll see in the examples. So we have these building blocks, which are all the objects for the classes that we have already created. When we assemble these objects, which are usually the smaller objects or the components that we can combine to create a new class. And then it provides us the flexibility. The components can be swapped at runtime without breaking behavior. If we can change, we need to change something inside the class, we can just change the behavior, change the details of the objects, or we can simply remove an object from the class. So it kind of gives us a flexibility that we can reflect throughout the classes that we create. And it also allows us to use encapsulation where we can hide the implementation details or the internal details of the objects. We just use them inside the classes, and we can access these classes from another class. So we can access these objects from another class. To Although we have not studied inheritance, and I'll skip this the difference between the inheritance and composition for a later part. But we usually have this choice of using inheritance or composition, so we can use inheritance in certain situations. When we can use composition in some certain situations, and here in this lecture we are focusing on composition. So I'll check to that, and we'll come to this slide at a later uh, time when we have studied inheritance. तो फिलहाल इसको यहाँ पर skip कर लेते हैं. The ASM relationship can be seen in many real-world objects. For example, we have this car, and we can see that car is made up of many individual smaller objects. Like a car has an engine, it has a transmission system, it has brakes, it has wheels. We can separate each of these. We can build each of these objects separately, and then we can jam them together to form a class to create a car. So we can have this engine, we can have this transmission system, we can have the brakes. Each of these are created separately.
and we can combine them together to create this car object. So the key insight is the car does not inherit from engine, it owns one. Okay, so and each part can be replaced independently. We can replace the wheels, we can replace the brakes, we can replace the engine if we need to. And to look at this example of inheritance of composition, we have these individual components of car. So we have this car trunks, we have the bonnet of the car, we have this trunk of the car, and we have these individual components, the fuel tank, the engine, the back suspension, the seats, and we have the wheels, and we might need with the brakes, we might need some of the objects we need more than one, like we have need 4 or 5 wheels or the spare wheel, and the gear lever, this front suspension, the lights in the car, and the steering wheel. And we can see that each of these components is an individual object that we can join together to create a new object of the car class, and then we can add features of its own, like we can add color to this car, we can add a registration number to this car. So the car, we can have a model for this car. So the car can have its own features as well as it has it has objects of these other classes that combine together to create this one car object. And then we can add features of its own, like you want a green car, a red car, a orange car, and a pink car maybe. So you can add features of it. So what we need to keep in mind is that अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो, कोई ऐसी डिटेल हो या कोई ऐसा एट्रीब्यूट हो जिसकी अपनी एट्रीब्यूट्स हो, जिसकी अपनी डिटेल्स एक्स के लिए हमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ सकती हो, in that situation we will be using composition. So if we have a situation that where we have an object, and that object in itself where we have an attribute for a certain object, and that object in itself, that attribute in itself requires more than one attributes to define it or to store the details for. For example, हमारे पास एक course है, तो course we can see के हम इसको include कर सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स में, like student has a course, faculty has a course, लेकिन course की अपनी डिटेल्स एग्जांपल हम लोगों ने देखी थी, कोर्स की अपनी डिटेल्स जैसे भी है, दिस कोर्स कोड, कोर्स नेम एंड कोर्स क्रेडिट आवर्स, वी कैन और डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें, एक हम बुक ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अगर हमने स्टूडेंट क्लास में कोर्स की डिटेल्स ऐड करनी हो तो स्टेट के हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स ऐड करें, कोर्स को 1, कोर्स को 2, कोर्स को 3, इस तरह कोर्स नेम 1, कोर्स नेम 2, कोर्स नेम 3, क्रेडिट आवर्स 1। Instead of that, हम use कर सकते हैं composition where we create a course class and we create an object of the course class, and then we use that object inside our student class. Example को देख लेते हैं UML class diagram की help से. We have been using UML class diagram. We have this box and this box has 3 components. और हमने car बना ली, ठीक है. So we have named this the car class, and we can have this box for the other components of this car. It's the engine वगैरह जो उसके attributes होंगे कार के, उसके लिए हमने component का compartment बना लिया. And then we have this third compartment for the functionality of the car. We'll keep it simple. हम इसमें बहुत ज़्यादा complicated details नहीं रखेंगे. Then we have this separate class engine. इसके अपने attributes है, like engine number, horsepower, capacity. You can add more details if you want to, but we are keeping things simple. और engine की functionality क्या है कि it can start and it can stop, और it needs to start transferring, start करें, it needs to start transferring, start. और what we do now is we need this engine inside the car, inside the car. So we create a variable, as you can see. हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिया कार क्लास में, और उसका डेटा टाइप हमने यूज कर लिया अपने इंजन क्लास. सो द इंजन क्लास
works as a data type of our engine variable, and this is what we call composition. और उसको हम तरह डायग्राम में शो करते हैं यूजिंग दिस लाइन। और जिस क्लास में हमने इसके ऑब्जेक्ट को इंक्लूड किया हो वहाँ पर हमने डायमंड सिंबल बनाया। दिस शोज द कंपोजिशन रिलेशनशिप between these two classes, that car has an engine. Okay? The car has an engine. Car also has another components. Let's say the car has the steering wheel. So we have a separate class for the steering wheel. और स्टेयरिंग व्हील को हम इंडिविजुअली अलग से यूज नहीं करते। वी नीड दिस स्टेयरिंग व्हील इनसाइड द कार। So what we do is we create this composition relationship to include an object of the steering wheel inside the car class, and we can see, okay, we can use this class as a data type for another attribute inside another class। ठीक है, तो composition basically इसमें हम देखेंगे भी कि हम अपनी क्लास को एज अ डेटा टाइप यूज कर रहे हैं इस दूसरी क्लास। सिमिलरली एक और हमारे पास कंपोनेंट है व्हील या टायर, व्हाटएवर वी वांट टू कॉल इट। इसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, साइज है, इसका ब्रांड है, मॉडल। इंपॉर्टेंट होता है कि आपका टायर कब कितना पुराना है, कितना नया है। और इसका फंक्शन क्या है कि वो एटलीस्ट रोटेट करे। और वी वांट टू हैव सेट ऑफ व्हील्स। देखिए ना, हमारे पास चार या पांच व्हील्स एक गाड़ी में हो सकती है, चार स्पेयर व्हील के लिए और चार उसमें चलाने के लिए। तो वी कैन हैव मोर देन वन व्हील्स, तो उसके हम एक array और से के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। and the data type of this variable is wheel। ठीक है, जो हमने क्लास बनाई और उसको हमने शो कर लिया थ्रू इस कंपोजिशन रिलेशनशिप। You can see composition, ये डायमंड सिंबल हम यूज करते हैं एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस डायमंड सिंबल इज टुवर्ड्स द क्लास जिसमें हमने किसी क्लास का वेरिएबल इंक्लूड किया हो, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट इंक्लूड किया हो। और इसका कंपोनेंट हम देख लेते हैं अब। सीट्स है, ठीक है, सीट का क्लास है हमारे पास। सीट्स के लिए हमने इंक्लूड कर लिया अपने क्लास में, तो वी हैव दिस सेपरेट सीट क्लास। उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और उसको हमने क्लास में मोर देन वन सीट्स इन अ क्लास, तो वो हमने ऐड कर लिया अपनी क्लास में। Similarly, car can have its own attributes. Let's say कंपनी गाड़ी में क्या है, उसकी कंपनी क्या है, उसका मॉडल कौन सा है, किस ईयर में बनी, कलर हमने कौन से देना अपनी कार को, तो it can have its own attribute। You can, or obviously you can add more attributes to this car, but हमारे लिए फिलहाल ये हमारे attribute। अच्छा, और we can then add functionality to this car के वो हम एटलीस्ट वो मूव करे। ठीक है, चलती का नाम गाड़ी है तो गाड़ी को एटलीस्ट चलना चाहिए। और what we can do is we can activate the functionalities of these other classes through the objects in this class। जैसे अगर हमने इंजन को स्टार्ट करना हो, गाड़ी को हमें स्टार्ट करना हो, तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट फंक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर हमने इंजन को स्टार्ट करना हो तो हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके स्टार्ट फंक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। सिमिलरली इसके साथ ब्रैकेट्स होने चाहिए। दूसरे जो हमारे फंक्शनलिटी है, हम इनके रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट से थ्रू इनको एक्टिवेट कर सकते हैं। कोड में हम कैसे करते हैं, कोड में जिस क्लास को हमने, लेट्स से दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ द कार, तो उन कंपोनेंट्स को हम पहले क्रिएट कर लेते हैं सो दैट वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लासेस। ठीक है, जब तक हम उन क्लासेस को क्रिएट नहीं करेंगे उनके हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो हमें ये क्लासेस पहले ही बनानी होंगी और उसके बाद हम इनको ऐड करते हैं अपने अ, जो हमने नई क्लासेस को इन सबको मिलाकर बनानी है। तो पहले हम लेट्स से कंपोनेंट्स क्लास हम पहले बना लेते हैं। और लेट्स से इंजन हमने बना लिया, इंजन के अंदर फंक्शन क्या आता है, ब्रेक्स हमने बना ली, ब्रेक के अंदर फंक्शन क्या आता है, फिर हम कार की क्लास बनाकर इसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इंजन क्लास इनसाइड द कार क्लास। उसके जो एट्रीब्यूट्स हम बनाते हैं कार के, तो वहां पर हमने एक इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया। दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे ब्रेक्स का और हम बना लिए। जो हमने एग्जांपल में देखा, तो हम सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए क्लासेस ज़्यादा बना सकते हैं। कार के अंदर फंक्शंस कौन सी होंगे, ट्राई हम उसको करते, तो इंजन हम स्टार्ट करते हैं, उसको हम रोकते हैं तो उसको हम ब्रेक्स लगाते हैं। तो वो फंक्शनलिटीज जो
लेट्स से ये स्टार्ट की फंक्शनलिटी डिफाइंड है हमारे इंजन क्लास में। इंजन क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू वी कैन कॉल दिस स्टार्ट फंक्शनलिटी एंड वी कैन एक्टिवेट दैट फंक्शनलिटी। सिमिलरली स्टार्ट की फंक्शनलिटी डिफाइंड है ब्रेक्स की क्लास में। यूज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्रेक्स क्लास वी कैन एक्टिवेट द स्टार्ट फंक्शनलिटी और गाड़ी को हम यहाँ से रोक सकते हैं। The car owns engine and brakes through their instance variables। ठीक है, हम गाड़ी को कार जो ऑब्जेक्ट्स हमने पिक कर दिए वो कार की प्रॉपर्टी है, बट सिंस दे हैव देयर ओन एट्रीब्यूट्स तो उनको हम अलग से डिफाइन कर लेते हैं और कार के अंदर भी यूज कर लेते हैं। और जो इसके बिहेवियर है वो पास ऑन करता है अपने कंपोनेंट्स को, हर एक के अलग अलग बिहेवियर को कार, और तो वो हम एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर उससे ब्रेक्स लगानी तो हम ब्रेक लगा लेते हैं कार के ऑब्जेक्ट के थ्रू, ब्रेक्स ऑब्जेक्ट के थ्रू, और दूसरे भी हम फंक्शनलिटीज को एक्टिवेट या कर सकते हैं। So composition basically means that we can have references. A class can have references to objects of other class as members। जिसमें हमें क्लास के ऑब्जेक्ट्स को दूसरे क्लास में as variables यूज कर सकते हैं। This is called composition and sometimes referred to as a relation, as we can see। या जैसे कि हमने देखा कि the car has brakes, the car has an engine, the car has seats, the car has a steering wheel, the car has wheels। तो has a relationship हमारे पास 15 है यहाँ पर, और इसको हम शो करते हैं as a relationship। एग्जाम्पल्स हमारे सामने बहुत सारी है रियल लाइफ में। लेट्स से वी हैव दिस एम्प्लॉय क्लास, और हर एक एम्प्लॉय जब इसकी एक हायरिंग डेट होती है, और और उसकी हायरिंग डेट होती है, इसकी बर्थ डेट होती है, जिसके बेस के ऊपर उसकी सैलरी डिसाइड होती है, उसकी रिटायरमेंट डेट डिसाइड होती है। तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, लेकिन डेट इन इटसेल्फ अगर हम देखें तो डेट की अपनी स्पेसिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स है कि किस फॉर्मेट में हमने डेट को लिखना होता है। और वो हम कर क्या सकते हैं कि वी क्रिएट एक डेट क्लास जिसमें हम उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई कर लेते हैं, और फिर हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं अपने दूसरी क्लास में। लेट्स से हम एम्प्लॉय हो गया, एडमिशन डेट हमारा होता है, जब हम एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर भी we can use an object of the get class on our own details तो वहाँ पर हम उनको यूज कर सकते हैं कंफ्यूजन कंपोजिशन। कैसे कि हम एम्प्लॉय क्लास लेट से हमारे पास है, और उसके सेंस वेरिएबल्स है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट एंड फायर डेट। मेंबर्स जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, these are references to string objects। ठीक है, string in itself is a class, तो उसके हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे पास स्ट्रिंग्स होंगी। मेंबर्स बर्थ डेट एंड हायर डेट आर references to डेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डेट ऑब्जेक्ट हम अलग से बना लेते हैं, डेट क्लास हम अलग से बना लेते हैं, और इसकी ऑब्जेक्ट्स पर हम एम्प्लॉय क्लास में बना सकते हैं। कैसे कि वी हैव दिस म्यूजियम के डेट क्लास हमारी बनी हुई है, तो इसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया एक बर्थ डेट के लिए। दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बना लिया इसकी हायरिंग डेट के लिए, कि अभी इसकी हायरिंग हुई किसी कंपनी में। फिर जब हम अब एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि दीज आर द डिटेल्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द कंस्ट्रक्टर ऑफ द एम्प्लॉय क्लास, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसकी बर्थ डेट और उसकी हायर डेट। तो उन वेरिएबल्स को, जिन उन ऑब्जेक्ट्स को जिन हमने डेट क्लास की बनाई, उनको हम पास ऑन कर सकते हैं। ये वैल्यूज होंगी, ये पास ऑन हो जाएंगी हमारी एम्प्लॉय क्लास में एज वेरिएबल्स ऑफ द एम्प्लॉय क्लास। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें इस तरह का आउटपुट आ सकता है कि जो हमने डेट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफाई किया था उसी फॉर्मेट में हमें ये डिटेल्स मिल जाएंगी। So basically, when you create an object of the employee class, what happens is we have these details। let's say first name का बन जाता है, उसकी वैल्यू स्टोर हो जाती है, लास्ट नेम की वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यूज में स्टोर हो जाती है, बर्थ डेट में डेट क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर है। ठीक है और इसी तरह
हायर डेट में भी डेट क्लास के ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाते हैं, वो वैल्यूज पास होंगी डेट क्लास में, वहां से इनिशियलाइज होंगी, और उसको फिर हम यहाँ पर यूटिलाइज कर लेंगे अपनी एम्प्लॉई क्लास में। एग्जाम्पल्स अगेन हमारे सामने बहुत सारी है। इन सिंपल टर्म्स अगर हम बहुत ही सिंप्लीफाई कर लें कंपोजिशन के आइडिया को, वी आर यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एज अ वेरिएबल इन another class, ठीक है। हम सिंपली बहुत ही सिंप्लीफाई अगर हम इसको काम करते हैं, सिंप्लीफिकेशन इसको देखना चाहें, तो हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं और इसके ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं एज अ वेरिएबल इन another। दूसरी बात, तो क्लास कैन आल्सो बी कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा, क्योंकि स्ट्रिंग है, इंट है और फ्लोट है, ये सिस्टम डिफाइंड है, सिस्टम में पहले से बनी हुई है। और फिर जब हमने अपनी ही क्लास को क्रिएट किया तो उसको हम यूज कर सकते हैं, उसको हम यूज करते हैं कर सकते हैं एज अ डेटा टाइप। तो उसको हम कह सकते हैं, अपनी क्लास में हम कह सकते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, कि हमने खुद ही एक डेटा टाइप क्रिएट कर लिया और उस खुद ही उसको यूज कर लिया एज अ डेटा टाइप। उसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे सामने बहुत सारी है। लेट्स से हमने देखी एम्प्लॉय और डेट की, स्टूडेंट हैज अ कोर्स, द फैकल्टी हैज अ कोर्स, तो वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कंपोजिशन। कोर्स हैज अ बुक, वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कंपोजिशन। लाइब्रेरी हैज बुक्स, बहुत सारी बुक्स होती है लाइब्रेरी में, तो वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कंपोजिशन। ऑर्डर जब हम प्लेस करते हैं तो वहाँ पर हम आइटम्स ऐड करते हैं, आइटम इन इटसेल्फ एक सेपरेट एंटिटी है, उसको हम यूज कर सकते हैं, वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कंपोजिशन। और सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे एग्जांपल्स अगर हम रियल लाइफ में देख ले तो हर एक चीज तकरीबन दूसरी चीजों को मिलाकर बनी हुई है। अगर हम मोबाइल फोन को देखें तो स्क्रीन अलग से बनती है, बैटरी अलग से बनती है, बॉडी उसकी अलग से बनती है, सिम कार्ड अलग से बनता है, चिप्स वगैरह सब अलग से बनती है, मेन बोर्ड अलग से बनता है। और फिर सबको मिलाकर एक नया ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं जिसको हम मोबाइल फोन कहते हैं। इस तरह आपके पीसीज को देख लो, अपने टीवीज को देख लो, हर एक चीज़ ऑलमोस्ट अगर हम देख ले, बहुत सारी चीज़ें कि जिनको हम दूसरे ऑब्जेक्ट से मिलाकर बनाते हैं। और बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में कंपोजिशन का, जहाँ पर हम कंबाइन कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को, क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, एक नई ऑब्जेक्ट हम वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको हम साथ साथ देखेंगे, इसको हम यूज करेंगे कंपोजिशन को, हम रिलेशन बनाएंगे डिफरेंट क्लासेस के बीच में, वहाँ पर हम कंडीशन यूज करेंगे, इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। अब इसकी टाइप्स हो सकती है, अल्दो दिस कोर्स हम उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे कौन सी टाइप्स है और कहाँ पर कौन सी यूज होती है। जेनरिक एक टर्म में यूज करूंगा कंपोजिशन का, जहाँ पर हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे किसी दूसरी क्लास में। एक टाइप को हम कह सकते हैं एग्रीगेशन, जहाँ पर एक क्लास एग्जिस्ट कर सकती है दूसरी क्लास के बगैर। लेट्स से यूनिवर्सिटी हैज डिपार्टमेंट्स, बट डिपार्टमेंट्स कैन एग्जिस्ट विदाउट द यूनिवर्सिटी। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती है जो कि इन इटसेल्फ उनका वजूद है। जैसे बुक है, अगर वो अगर कोर्स ना भी हो तो बुक की अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती है कि जहाँ पर जिसको हम स्ट्रिक्ट कंपोजिशन कहते हैं, स्ट्रांग ओनरशिप हो हमारे पास के। लेट्स से अगर हम एक घर बनाते हैं और उसमें रूम्स होती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने घर के बगैर एक रूम बना लिया। रूम्स घर के अंदर ही हो सकती है, तो वहाँ पर हम उसको स्ट्रांग कंपोजिशन कह सकते हैं। लेट्स से एक सिटी है, वो कंट्री के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, पहले कंट्री बनेगी उसके अंदर ही हम किसी सिटी को यूज कर सकते हैं एज वेरिएबल, अगर हम उसको कहें। उस तरह के एग्जांपल्स जिसमें एक स्ट्रांग रिलेशनशिप हो, तो उसको हम कंपोजिशन कहते हैं। एक वीक रिलेशनशिप हो सकता है, डिलीगेशन हम इसको कह सकते हैं। डेलीगेशन हो सकती है कि हम पास ऑन करें कुछ फंक्शनलिटी को दूसरी क्लासेस में, दूसरे कंपोनेंट्स में। लेकिन इन डिटेल्स में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। यू हैव स्पेशलाइज्ड कोर्सेज फॉर दिस के, वहाँ पर हम इनको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पर हम सिंपली कंपोजिशन का ही आइडिया यूज करेंगे, कंपोजिशन का कंसेप्ट यूज करेंगे, और जितने भी इस तरह के रिलेशनशिप होंगे उनको हम कंसिडर करेंगे एज अ कंपोजिशन, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना। जितने भी हम यहाँ पर
रिलेशनशिप इस तरह की यूज करेंगे तो उनको हम कंपोजिशन भी कहेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है, क्या हो सकती है, although we have studied interfaces, तो फिलहाल इसको एज इट इज रहने देते हैं। Why do we use composition या prefer composition और inheritance, उनको भी फिलहाल हम स्किप कर लेते हैं। फिलहाल we will try to understand कि um, हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिलाकर एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। To summarize, we can say composition models has a relationship where objects are built from other components. Can prefer composition over inheritance for flexibility and use coupling. We will see and we'll discuss what do we mean by inheritance and what do we mean composition, and how do we compare with the two, because ये दोनों relationships होती है different क्लासेस के बीच में, और उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम फिर देखेंगे। एग्रीगेशन क्या होती है, कंपोजिशन कहते हैं, तो आई विल एम्फसाइज के इस डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। और डेलीगेशन क्या होती है, आसान करते हैं अपना फंक्शन को दूसरे कंपोनेंट्स में, और फिर हम कंबाइन करते हैं सारी डिटेल्स को टू फॉर्म एंड क्रिएट अ न्यू क्लास और न्यू ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे इस नेक्स्ट सेशन में, कोडिंग एग्जाम्पल के हम किस तरह कोड कर सकते हैं कंपोजिशन को ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में, पाइथन में। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन।